جناب چیئرمین، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے انارکلی کے اندر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے چند دن اس سے پہلے یہ واقعہ یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوا، اور منسٹر صاحب نے اناؤنس بھی کیا کہ یہ ٹیررزم کا واقعہ ہے، اور آج یہ بات اخبارات میں بھی شائع ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ریڈ الرٹ جو ہے وہ ملک میں کر دی ہے، اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز اور افواج پاکستان کو جو آئندہ دنوں میں آنے والی تھریٹ ہے اس سے آگاہ کیا ہے۔ جناب چیئرمین، بات کچھ بنیادی سی ہے، اور اس کا اشارہ اب مجھ سے پہلے جو فاضل سینیٹر نے بات کی انہوں نے کچھ اشارہ اس کی طرف کیا۔ شیخ صاحب یا دی انٹیریئر منسٹر، I should not say Sheikh Saab, but the interior minister, Mr. Chairman, can take all the steps that he wants، لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی چلتے چلے جائیں گے، اور یہ واقعات اس لیے چلتے چلے جائیں گے کہ جب تک پارلیمان اور یہ قوم اور پاکستان کی ریاست اس بات کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ در حقیقت ان واقعات کے پیچھے وہ کون سے عوامل ہیں اور ان عوامل کو کس طرح دور کیا جائے، اس وقت تک جناب چیئرمین یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جناب چیئرمین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کی ریاست نے رائٹ ونگ کی پارٹیز کو اور ملیٹنٹ گروپس کو in furtherance of their internal and external political agenda سپورٹ کیا، اور جناب چیئرمین اس کے نتیجے میں انہوں نے اس ملک کے اندر جو ملٹی لنگول اینڈ ایتھنک کمپلیکشن پاکستان کا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی with a strong dose of religion۔ جناب چیئرمین، it countered the democratic and nationalist movements by giving patronage to extreme right-wing forces. It countered linguistic and cultural diversity through an imported Arab culture. And as a consequence, Janab Chairman, پاکستان آج دن تک اپنی سمت کو جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین، ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو صدارتی نظام آیا اور اس صدارتی نظام کے تحت جو صدر مقرر کیے گئے ان میں سے ایک صدر نے، ایوب خان نے، امریکہ کو بڑا بیئر پشاور کے اندر بیس دی۔ پاکستان نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا۔ دوسرا صدر جناب چیئرمین ضیاء الحق نے افغان جہاد کا انیشیٹ کیا، اور اس کی کانسیکوینس کے نتیجے میں جناب چیئرمین پاکستان میں کلیشنکوف، ڈرگ اور ٹیررزم کے کلچر نے اپنا پنپا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین جو تیسرا پریزیڈنٹ تھا مشرف، اس نے افغان وار یو ایس کے ساتھ ابتدا کی، اور 9/11 کے بعد اور آج کی جو صورتحال ہے جناب چیئرمین وہ انہی ڈیسیجنز کا نتیجہ ہے۔ ان ڈیسیجنز کے نتیجے میں جناب چیئرمین کیا ہوا؟ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ گروپس نے اسلامک کورٹس کراچی، لاہور، پشاور، سوات کے اندر بنائے، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی۔
मिलिटेंट ग्रुप्स ने स्नैच अवे कर स्टेट के राइट को टू वायलेंस, एंड द स्टेट जस्ट वॉच्ड, मिस्टर चेयरमैन. Militant groups challenged the right of the state through violence, जनाब चेयरमैन, और रियासत सिर्फ देखती रह गई. इसके नतीजे में जनाब चेयरमैन आज की जो सूरत हाल है उसमें एक तरफ तो तालिबान आके अफगानिस्तान के अंदर बैठ गए हैं, दूसरी तरफ टीटीपी है और उनके कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में उनके ग्रुप्स जो हैं वो रीयूनाइट कर रहे हैं और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है और टेररिज्म वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है. और जनाब चेयरमैन, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जनाब चेयरमैन जो है वो खत्म किया जा रहा है. जनाब चेयरमैन, विदाउट कंसेंसस की डिसीजंस के अंदर, I'll just take 3 minutes. जनाब चेयरमैन, विदाउट कंसेंसस की डिसीजंस के नतीजे के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो मार्ज़े वजूद में आई, जिसके अंदर ना पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना दीगर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया. जनाब चेयरमैन, रियासत को ये इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए एजेंडा जो है वो सेट करे, और बिलखसूस ऐसी रियासत जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि उसकी वजह से आज पाकिस्तान ऐसे नहज पे आके खड़ा हुआ है. आखिर में जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ इशारा करूंगा चंद बातों का जो 22 तारीख को फाजिल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब चेयरमैन फाजिल वजीर साहब ने यह फरमाया कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो काबुल के जरिए से हो रहे थे, जबकि जनाब चेयरमैन पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी के अंदर और प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद जब इसका ऐलान टीवी के चैनल के ऊपर किया, टर्किश इंटरव्यू के अंदर यह हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की हुकूमत डायरेक्टली टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रही है, और तालिबान ने यह बात कही है कि हम जो हैं वो डायरेक्टली मुज़ाकरात, आप डायरेक्टली टीटीपी के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें. और मेरे इल्म के मुताबिक जनाब चेयरमैन, आज भी हुकूमत पाकिस्तान डायरेक्टली वो मुज़ाकरात कर रही है. जनाब चेयरमैन, टीटीपी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान entered into a 20-day ceasefire on 2/10/2021. 10वें महीने के अंदर जनाब चेयरमैन, 10वें महीने के अंदर जनाब चेयरमैन, the ceasefire was violated by TTP on the 3rd, 5th, 8th, 11th को 3 वाकयात हुए, फिर 19 और 21 को 4 वाकयात हुए, फिर 22 को 2 वाकयात हुए. तो जब आप मुज़ाकरात और सो कॉल्ड सीज फायर चल रहा था तो एक महीने के अंदर मोर देन अ डजन वाकयात ऑफ वायलेशन ऑफ द सीज फायर टुक प्लेस बाय द टीटीपी. और फिर आज हमें यह कहा जा रहा है कि टीटीपी के जो टर्म्स हैं वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि हमने उनको पॉलिटिकल एमनेस्टी भी देने की बात की, हमने उनके कैदियों को रिहा करने की भी बात की जनाब चेयरमैन. लेकिन आज फिर भी जब टीटीपी ये बात कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, आज फिर भी हुकूमत ये बात कह रही है कि हमारे दरवाजे टीटीपी के लिए खुले हैं अगर वो पाकिस्तान आते हैं. तो जनाब चेयरमैन, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीजें जो हैं वो रुकें. और आखिर में जनाब चेयरमैन, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में द ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर सेड दैट काबुल, आई विल फॉरगेट दैट द ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि देयर आर मेनी इंटरनेशनल फोर्सेस जो इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं, और बहुत से ऐसे
ग्रुप्स यहां पे कार फरमा हैं जिनकी इंटरनेशनल बैकिंग है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का, और उसमें उन्होंने जिक्र किया सीपेक का, कि सीपेक को भी डिस्टेबलाइज करने की ये कोशिशें हो रही हैं। तो जनाब चेयरमैन, मेरा यहां पे एक बुनियादी सवाल उठता है आपके तवज्जुह से कि जब पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि पाक चीन दोस्ती को और सीपेक को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर एक इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर अमेरिका की तरफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका ने तो यह बात वाज़े तौर पे कही है कि उसकी चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी है, और उस चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी के अंदर जनाब चेयरमैन उसने हिंदुस्तान को इस खित्ते का स्पोक्समैन जो है वो इस खित्ते का पुलिसमैन मुकर्रर करने की बात की है, और उस पुलिसमैन को पाकिस्तान जो है वो कभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और ना होगा जनाब चेयरमैन। लिहाजा जनाब चेयरमैन ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब चेयरमैन मेरी आपसे इस्तदा है कि आप कमेटी ऑफ द होल का इजलास बुलवाएं ताकि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को वहां पे बुलाया जा सके और वहां पे ये बैठ के ये खुली बात हो, पब्लिक के सामने ये बात हो, इन कैमरा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो इस बात का तयन करें उनके आगे की सिमत क्या होगी। I am grateful to you and I apologize for having overstepped the time. Thank you.